Good afternoon, my dear audience. In today's session, we will discuss about ICH guidelines. So, first we know about what it means of ICH. All of you know. ICH means International Conference on Harmonization. Means this is a technical requirements for registration of pharmaceuticals for human use. This is a unique project that brings together the regulatory authority of three nations. First one is Europe, second one is Japan, and third one is United States. In this regulatory authority, experts from the various pharmaceutical industry were also included to discuss scientific and technical aspects of product registration. What is the aim of ICH? The ICH was established in 1990 as a joint regulatory or industry project with the aim to improve the efficiency of the process for developing and registering new medicinal products in Europe, Japan, and the United States in order to make these products available to patients with the minimum of delay. If you launch your product, if you sell your product in US, then it is mandatory to register your product in US. So you must follow the regulatory guidelines of US. In ICH, 6 parties represent the regulatory bodies and research-based industry in the 3 regions, Europe, Japan, and the USA. Why? These 3 regions are selected because the vast majority of new medicines were currently developed by these 3 areas. Yes, ICH parties consist of 6 members. First one is European Commission, जिसको आप यूरोपियन यूनियन भी बोलते हैं. Second one is European Federation of Pharmaceutical Industry and Association, in short form EFPIA. Third one is Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan. Next, Japan Pharmaceutical Manufacturers Association, JPMA. US FDA, Pharmaceutical Research and Manufacturers of America. Objectives of ICH is more economical use of human, animal, and material resources. Second objective is elimination of unnecessary delay in the global development and availability of new medicines. Next is maintaining safeguards on quality, safety, efficacy, and regulatory obligation to protect public health. These are the 3 objectives to framing ICH guidelines. Topic of ICH. ICH controls or work on 4 broad categories of pharmaceuticals. And in short form, these are represented by Q7. Q for quality, S for safety, E for efficiency, M for multidisciplinary. Q relating to chemical and pharmaceutical quality assurance. Quality में क्या देखते हैं? Chemical और pharmaceutical जो सब्सटेंस फॉर्मुलेशन है उसकी क्वालिटी किस सेंस में देखेंगे? एक तो हम उसकी स्टेबिलिटी को टेस्ट करेंगे और दूसरा उसमें इम्प्योरिटी. नेक्स्ट पैरामीटर इज सेफ्टी, दो relating to in vitro and in vivo preclinical studies in which carcinogenicity and genotoxicity of the new formulation will be tested. Next parameter is efficiency. Efficiency related to
clinical studies in human object means dose response study and GCP, good clinical practice. Multidisciplinary cross-cutting topics, we do not fit uniquely into one of the above categories. For example, MEDRA, ESTRI, M3, CTD, M5. These are the multidisciplinary. क्वालिटी जैसा कि डिस्कस हुआ है, इसमें आप फार्मास्यूटिकल और केमिकल फॉर्मुलेशन की आप स्टेबिलिटी और इम्प्योरिटी को देखते हैं। सेफ्टी में आप कार्सिनोजेनिसिटी और जेनोटॉक्सिसिटी को टेस्ट करते हैं। फॉर्मुलेशन की इफिशिएंसी में आप DRS और GCP की स्टडी करते हैं। और मल्टीडिसिप्लिनरी में आप मेड्रा, ESTRI, M3, CTD, M5 ये स्टडी। ओवरव्यू ऑफ ICH, ठीक है। हम क्वालिटी की बात करेंगे। क्वालिटी को भी कई सब सेक्शंस में कैटेगराइज कर दिया। Q1A जिसको हम R2 से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज फॉर स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग एंड देयर प्रोडक्ट्स। R2 में क्या हम स्टडी करते हैं? स्टेबिलिटी टेस्टिंग किसकी? न्यू ड्रग्स और उसके प्रोडक्ट्स की। Q1B में आप फोटो स्टेबिलिटी को टेस्ट करते हैं कि आपका फॉर्मुलेशन, ठीक है, लाइट में स्टेबल है कि नहीं है, या उसको लाइट से प्रोटेक्ट करना जरूरी है। इसीलिए आप देखते हैं बहुत सारे फॉर्मुलेशन मार्केट में अम्बर्ड कलर बॉटल में या अम्बर्ड कलर पैकिंग में अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट सबसेक्शन इज Q1C। दिस इज स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू डोजेस फॉर्म की स्टेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए आप Q1C। Q1D ब्रैकेटिंग एंड मैट्रिक्सिंग डिजाइन फॉर स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ ड्रग सब्सटेंस एंड ड्रग प्रोडक्ट्स। इसमें आप ब्रैकेट या मैट्रिक्स जो बनाते हैं फॉर्मुलेशन के लिए, ड्रग की सब्सटेंस के लिए, उसकी स्टेबिलिटी को स्टडी करते हैं, ठीक है। उसकी गाइडलाइंस आपको Q1D में मिलेगी। नेक्स्ट Q1E, Q1E gives guidelines for evaluation of stability data। आप जो भी आपने स्टेबिलिटी डेटा कलेक्ट किए उसको आप इवेल्युएट करेंगे, उसकी गाइडलाइंस आपको किस में मिलेगी? Q1E में। Q1F is for stability data package for registration in climatic zones 3rd and 4th. Q2A definition and terminology, analytical validation। अगर आपको एनालिटिकल वैलिडेशन करना है तो आपको गाइडलाइंस कहाँ मिलेगी? Q2A में। Q2B में मेथडोलॉजी से रिलेटेड आपको गाइडलाइंस मिलेगी। Q3A में आपको गाइडलाइंस मिलेगी इम्प्योरिटीज इन न्यू ड्रग सब्सटेंसेस। Q3B में आपको न्यू ड्रग फॉर्मुलेशन की इम्प्योरिटीज की गाइडलाइंस मिलेगी। Q3C इम्प्योरिटीज गाइडलाइंस फॉर रेजिडुअल सॉल्वेंट्स। नेक्स्ट Q4 फार्माकोपिया, गाइडलाइंस फॉर फार्माकोपिया। Q4A फार्माकोपियल हार्मोनाइजेशन मीन्स आपका USP हो गया, IP हो गया, BP हो गया, BPC हो गया, ठीक है। तो इनको हार्मोनाइज करना, उसकी गाइडलाइंस आपको Q4A में मिलेगी ICH। Q5A इसमें आपको गाइडलाइंस मिलेगी वायरल सेफ्टी इवेल्युएशन। Q5B में आपको गाइडलाइंस मिलेगी जेनेटिक स्टेबिलिटी की। Q5C में आपको स्टेबिलिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के लिए गाइडलाइंस मिलेगी। Q5D में आपको सेल सबस्ट्रेट की गाइडलाइंस आपको मिलेगी। Q6A में आपको स्पेसिफिकेशन, टेस्ट प्रोसीजर एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट, इसकी गाइडलाइंस आपको Q6A में मिलेगी।
6B में आपको स्पेसिफिकेशन, टेस्ट प्रोसीजर एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल ऑब्लिक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। Q7A में आपको GMP फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है, API की GMP की गाइडलाइंस आपको Q7A में मिलेगी। Q8 में आपको गाइडलाइंस मिलेगी फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट की। Q9 में आपको गाइडलाइंस मिलेगी क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। Q10 में आपको गाइडलाइंस मिलेगी फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। ये तो था क्वालिटी। नेक्स्ट पैरामीटर है सेफ्टी। उसमें भी आपकी कई क्लासेज हैं, जैसे S1A, जिसमें आपको गाइडलाइंस मिलेगी, गाइडलाइंस ऑन द नीड फॉर कार्सिनोजेनिसिटी स्टडी ऑफ फार्मास्यूटिकल, कि आपको कब नीड प्रोड्यूस करना है कार्सिनोजेनिक स्टडी करने के लिए अपने फॉर्मुलेशन या फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में, तो उसकी गाइडलाइंस आपको S1A में मिलेगी। S1B में आपको टेस्टिंग फॉर कार्सिनोजेनिसिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, टेस्टिंग प्रोसीजर की गाइडलाइंस मिलेगी S1B में। S1C में आपको डोज सिलेक्शन फॉर कार्सिनोजेनिसिटी स्टडी ऑफ फार्मास्यूटिकल। S2 में आपको गाइडेंस ऑन जेनोटॉक्सिसिटी टेस्टिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर फार्मास्यूटिकल इंटेंडेड फॉर ह्यूमन यूज। S3A में आपको नोट फॉर गाइडेंस ऑन टॉक्सिकोकाइनेटिक्स, ठीक है, इसमें आपको टॉक्सिसिटी स्टडी की गाइडेंस मिलेंगी। S3B में आपको फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में गाइडलाइंस होगी, जिसमें आपका गाइडेंस फॉर रिपीटेड डोज डिस्ट्रीब्यूशन स्टडीज के बारे में आपको गाइडलाइंस मिलेगी। S4 ड्यूरेशन ऑफ क्रॉनिक टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स कौन से यूज करते हैं आप, रोडेंट्स एंड नॉन रोडेंट टॉक्सिसिटी स्टडी। रोडेंट्स में भी टॉक्सिसिटी को स्टडी करते हैं और नॉन रोडेंट में भी टॉक्सिसिटी को स्टडी करते हैं। S5 में आप डिटेक्शन ऑफ टॉक्सिसिटी टू रिप्रोडक्शन फॉर मेडिसिनल प्रोडक्ट एंड टॉक्सिसिटी टू मेल फर्टिलिटी। S6 में एडेंडम टू ICH S6, जिसमें आपको प्री क्लिनिकल सेफ्टी इवेल्युएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डेराइव्ड फार्मास्यूटिकल्स। S6 में आपको प्री क्लिनिकल सेफ्टी इवेल्युएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डेराइव्ड फार्मास्यूटिकल्स। नाउ कम्स टू इफिकेसी। इफिकेसी जिसमें आप DRC और GCP दोनों को स्टडी करते हैं, ठीक है, अपने फॉर्मुलेशन की। तो इसकी पहली सब क्लास है E1, जिसमें आप द एक्सटेंट ऑफ पॉपुलेशन एक्सपोजर टू एसेस क्लिनिकल सेफ्टी, आपको कितने पॉपुलेशन पे अपनी क्लिनिकल सेफ्टी को एसेस करना है उसके बारे में आपको गाइडलाइंस E1 में मिलेगी। E2A में क्लिनिकल सेफ्टी डेटा मैनेजमेंट के बारे में गाइडलाइंस मिलेगी। E2B में आपको मेंटेनेंस ऑफ द ICH गाइडलाइंस ऑन क्लिनिकल सेफ्टी डेटा मैनेजमेंट। E2B में ही आपको रिवीजन ऑफ द ICH गाइडलाइंस ऑन क्लिनिकल सेफ्टी डेटा मैनेजमेंट, ठीक है। डेटा एलिमेंट्स फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट्स की गाइडलाइंस भी आपको E2B में ही मिलेगी रिवाइज्ड। E2C में आपको क्लिनिकल सेफ्टी डेटा मैनेजमेंट, पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट्स फॉर मार्केटेड ड्रग, इसकी गाइडलाइंस मिलेगी। E2D में आपको पोस्ट अप्रूवल सेफ्टी डेटा मैनेजमेंट की गाइडलाइंस मिलेगी, जिसमें आपका डेफिनेशन, स्टैंडर्ड फॉर एक्सपेंडिटेड रिपोर्टिंग। E2E में आपको फार्माकोविजिलेंस प्लानिंग के बारे में गाइडलाइंस मिलेगी। E2F में आपको डेवलपमेंट सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट के बारे में आपको गाइडलाइंस मिलेगी। E3 में आपको स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स की गाइडलाइंस मिलेगी। E4 में आपको डोज रिस्पॉन्स इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट ड्रग रजिस्ट्रेशन
इसके गाइडलाइंस की इंफॉर्मेशन मिलेगी। E5 में आपको इथनिक फैक्टर्स इन द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फॉरेन क्लिनिकल डेटा की गाइडलाइंस मिलेगी। E6 में आपको गाइडलाइंस फॉर GCP। E7 में आपको स्टडी इन सपोर्ट ऑफ स्पेशल पॉपुलेशन गैरियाट्रिक मेडिसिन की इफिकेसी के बारे में गाइडलाइंस मिलेगी। E7 E8 में आपको जनरल कंसिडरेशन फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। E9 में आपको स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। E10 में आपको चॉइस ऑफ कंट्रोल ग्रुप एंड रिलेटेड इश्यूज इन क्लिनिकल ट्रायल्स। E11 में आपको क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स इन द पीडियाट्रिक पॉपुलेशन। E12 में आपको प्रिंसिपल फॉर क्लिनिकल इवेल्युएशन ऑफ न्यू एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। E14 में आपको द क्लिनिकल इवेल्युएशन ऑफ QT एंड QTC इंटरवल प्रोलॉन्गेशन एंड प्रो एरेथमिक पोटेंशियल फॉर नॉन एरेथमिक ड्रग्स। E15 में आपको डेफिनेशन फॉर जीनोमिक बायोमार्कर्स एंड फार्माकोजीनोमिक्स के बारे में गाइडलाइंस मिलेगी। फार्माकोजेनेटिक्स के बारे में गाइडलाइंस मिलेगी। जेनोमिक डेटा एंड सैंपल कोडिंग कैटेगरीज के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। E16 में आपको जीनोमिक बायोमार्कर रिलेटेड टू ड्रग रिस्पॉन्स के बारे में गाइडलाइंस आपको E16 में मिलेगी। नेक्स्ट कम टू पैरामीटर मल्टीडिसिप्लिनरी गाइडलाइन M1, जिसको आप मेड्रे के नाम से MEDDRA, ठीक है। इसमें आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। M2 ESTRI, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन की गाइडलाइंस होगी। M3, जिसमें आपको नॉन क्लिनिकल सेफ्टी स्टडी फॉर द कंडक्ट ऑफ ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स एंड मार्केटिंग ऑथराइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स की गाइडलाइंस होगी। M4 CTD कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स की गाइडलाइंस होगी। M5 डेटा एलिमेंट्स एंड स्टैंडर्ड फॉर ड्रग डिक्शनरी के बारे में आपको गाइडलाइंस होगी। इम्प्योरिटी इन न्यू ड्रग सब्सटेंस, जो कि आप Q3A में आपको गाइडलाइंस मिलती है। प्रीमेबल, दिस डॉक्यूमेंट इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड गाइडेंस फॉर रजिस्ट्रेशन application on the content and qualification of impurity in new drug substances produced by chemical synthesis and not previously registered in a region or member state। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में आपको गाइडेंस मिलेगा, गाइडलाइंस मिलेगी अपने प्रोडक्ट को, अपने फॉर्मुलेशन, न्यू ड्रग फॉर्मुलेशन को जो कि आपने केमिकल सिंथेसिस से बनाया है उसको रजिस्टर्ड कराने के, ठीक है। और साथ में ये भी इंश्योर करना होगा कि आपका वो फॉर्मुलेशन आपकी स्टेट में पहले कभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। सेकंड, it is not intended to apply to new drug substances used during the clinical research stage of development। ठीक है, यह आपको उसके बारे में गाइडलाइन नहीं देगा कि आपने न्यू ड्रग सब्सटेंस जो कि अभी क्लिनिकल स्टेज में है, ठीक है, जिनका जो क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, आप उसको उस देश, उस रीजन में या किसी और कंट्री में आप मार्केटिंग या सेल्स कर सकते। ये फॉर्म उसके लिए, ये सेक्शन इस चीज की गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। The following types of drug substance are not covered in this guideline। ICH guidelines में कुछ प्रोडक्ट है जो कि कवर नहीं होते हैं, जैसे कि आपके बायोलॉजिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, पेप्टाइड, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, फर्मेंटेशन प्रोडक्ट, सेमी सिंथेटिक प्रोडक्ट, ठीक है, हर्बल प्रोडक्ट एंड फूड प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल और प्लांट ओरिजिन। ये प्रोडक्ट आपके Q3A में इसके बारे में कोई गाइडलाइंस नहीं होगी। Impurities in new drug substances are addressed from two perspectives। एक तो केमिस्ट्री के एस्पेक्ट में आप बता सकते हैं, ठीक है, इंक्लूड क्लासिफिकेशन। अगर आप केमिस्ट्री के एस्पेक्ट में बता रहे हैं तो उसका आपको क्लासिफिकेशन बताना, उसका क्लासिफिकेशन देना होगा।
इम्प्योरिटीज को आइडेंटिफाई करना होगा, उसकी रिपोर्ट को जनरेट करना होगा, लिस्टिंग ऑफ इम्प्योरिटीज इन स्पेसिफिकेशन एंड अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। दूसरा टर्म ये है कि आप सेफ्टी एस्पेक्ट में आप बात करते हैं तो इसमें आपको specific guidance for qualifying those impurities that were not present or were present at substantially low levels in batches of a new drug substance used in safety and clinical studies. Now comes to classification of impurities. Impurities can be classified in the following categories. First one is organic impurities, ठीक है, जो कि प्रोसेस एंड ड्रग रिलेटेड हो सकता है। दूसरा इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज एंड थर्ड वन इज रेजिडुअल सॉल्वेंट इम्प्योरिटीज। Organic impurities can arise during the manufacturing process or during the storage of drug substances. They can be identified or unidentified, volatile or non-volatile, and include starting materials, byproducts, intermediates, degradation product, reagents, ligands, and catalysts. Inorganic impurities can result from the manufacturing process. They are normally known and identified and include. इसमें अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोई इम्प्योरिटीज इंक्लूड हुई है तो वह आसानी से नॉर्मली आइडेंटिफाई हो जाती है और वो इनमें से कोई एक कैटेगरी को बिलोंग करेगी, या तो रिएजेंट्स होंगे, लिगेंड्स होंगे, या कैटलिस्ट होंगे, या हैवी मेटल या अदर रेजिडुअल कंटेंट्स होंगे, या इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होंगे, या अदर मटेरियल जैसे फिल्टरेट्स या चारकोल, ये इम्प्योरिटी होगी। सॉल्वेंट्स आर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक लिक्विड्स यूज्ड एज अ वेहिकल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन और सस्पेंशन इन द सिंथेसिस ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंसेस। Since these are generally of known toxicity, the selection of appropriate controls is easily accomplished. ठीक है, तो इसके लिए आपको कौन सी क्लास में जाना है? Q3C। ठीक है, Q3C में आपको फॉलोइंग से रिलेटेड गाइडलाइंस मिलेगी। और फॉलोइंग कैटेगरी क्या है? जो एक्सट्रेनियस कंटामिनेंट्स हैं that should not occur in a new drug substance and are more appropriately addressed as GMP. ठीक है, polymorphic form, enantiomeric impurities, ठीक है, इसके बारे में आपको Q3C में आपको कोई गाइडलाइंस नहीं मिलेगी। रेशनल फॉर द रिपोर्टिंग एंड कंट्रोल ऑफ इम्प्योरिटी। रेशनल क्या है? Organic impurities, the actual and potential impurities most likely to arise during the synthesis, purification, and storage of the new drug substance. The chemical reaction involved in the synthesis impurities associated with raw material that would contribute to the impurity profile of new drug substance and possible degradation of product, or may lower down their therapeutic efficacy. This discussion can be limited to those impurities that might reasonably be expected based on knowledge of the chemical reaction and condition involved. The structure of actual impurities present in the new drug substance at a level greater than the identification threshold given in attachment should be described. Note that any impurity at a level greater than the identification threshold in any batch manufactured by the proposed commercial process should be identified and must be reported to the authority. When identification of an impurity is not feasible, a summary of laboratory studies demonstrating the unsuccessful effort should be included in the application, where attempts have been made to identify impurities present at levels of not more than the identification threshold. It is useful also to report the result of the study. Inorganic impurities are normally detected and quantified using pharmacopoeial or other appropriate references. Carryover of catalyst to the new drug substance should be evaluated during the development process. The need for inclusion or exclusion of inorganic impurity in the new formulation or new drug substances specifications should be discussed. Acceptance criteria should be based on pharmacopoeial standards.
or known safety data. Solvent, the control of residues of the solvents used in the manufacturing process for the new drug substance should be discussed and presented according to the ICH-Q3C guidelines for residual solvents. Chemical development studies conducted to scale up, optimize, and validate the manufacturing process for a new drug substance. In enantiomeric impurity, a compound with the same molecular formula as the drug substance that differ in the spatial arrangement of atoms within the molecule and is a non-supposable mirror image. ये आपकी कुछ इम्प्योरिटी है जो कि अनआइडेंटिफाइड होती है. ठीक है. नेक्स्ट आपका एक्सट्रेनियस कंटामिनेंट जैसे कि एन इम्प्योरिटी अराइजिंग फ्रॉम एनी सोर्स एक्सटर्नस to the manufacturing process, herbal product, medicinal product containing exclusively plant material or vegetable drug preparation as active ingredient in some traditional materials of inorganic or animal origin can also be present. Identified impurities and impurities for which a structure characterization has been achieved. Identification threshold क्या होता है? A limit above which an impurity should be identified. Impurity क्या होता है? Any component of the new drug substance that is not the chemical entity defined as the new drug substance. ठीक है? Chemical entity जो present है आपके फॉर्मुलेशन में लेकिन वो न्यू ड्रग सब्सटेंस की केमिकल इंटाइटी नहीं है तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? इम्प्योरिटी में रखेंगे. इम्प्योरिटी प्रोफाइल अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड एंड अनआइडेंटिफाइड impurity present in a new drug substance. These are the attachment of threshold, maximum daily use, daily dose, reporting threshold, identification threshold, and qualification threshold. ठीक है. अभी less than or equal to 2 ग्राम पर डे है तो रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड 0 to 0.05% होगा. आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड 0.10% होगा. क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड 0.15%. यदि आपकी मैक्सिमम डेली डोज 2 ग्राम पर डे है तो रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड 0.03% होगा. आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड 0.05% होगा एंड क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड भी 0.05% होगा. The attachment is only illustrative and is not intended to serve as template how result on impurities should be presented in an application file. Normally, raw data are not presented. After identification, if the response factor is determined to differ significantly from the original assumption, it may be appropriate to remeasure the actual amount of the impurity present and re-evaluate against the qualification threshold. If considered, if impurity present in your formulation is in considerable amount, the quantity, a minimum screening, for example, genotoxic potential must be conducted. A study to detect point mutation and one to detect chromosomal abolition, both in vitro are considered an appropriate minimum screening. If general toxicity studies are desirable, one or more studies should be designed to allow comparison of unqualified or qualified materials. In general, a minimum duration of 14 days and maximum duration of 19 days should be considered for appropriate studies. Lower threshold can be appropriate if the impurity is unusually toxic. ठीक है. यदि impurity ऐसी प्रेजेंट है जो कि टॉक्सिक है तो उसका जो थ्रेशोल्ड होता है जनरली लोअर होता है. फॉर एग्जांपल do known safety data for this impurity or its structure class preclude human exposure and the concentration present. That's all for today's session. Thank you to all audience. Thank you very much.